We are starting with our first topic, physical testing of hydraulic cement. Hydraulic, yeah, this is specifically for hydraulic. I have explained in last session, last Friday session, what is the meaning of hydraulic. And one thing, all the physical testing of hydraulic cement are as per IS 4031. There are different sections of IS 4031, parts rather, for different type of testing. And there are so many parts. But in this session, we will focus only those portions of testing that are very much relevant to you. Of course, I will show you the list of the complete tests. What is covered by IS 4031. But all of them may not be that relevant to you, or the procedures of all of them may not be required by practicing civil engineers. Only the results may be important to them. So I will not go in that detail, procedural detail of some of the tests. Of course, I will mention the basic principle of those tests. But the tests that are really relevant to field civil engineers, practicing civil engineers like you, I will go in detail. So basically, there are two issues in testing of cement. I think most of you are aware. First, of course, you are the user. So you should know what are the implications of different tests. That is important. But one more very important area is that when you purchase cement from a supplier or from a manufacturer, then this is my experience that most of the corporate consumers, they are asking for on-site testing. On-site testing means either the consumer go to the laboratory of the manufacturer, or they call the manufacturer representative at their site where they have stored the cement, and they do the joint sampling. And the joint sampling means sample collected by joint sampling is tested by some third party or whatsoever is the mutual agreement. If with the joint sample the consumer wants to go to the manufacturer lab, this is open. If consumer is having his own well settled laboratory, then the option is that okay, he may carry out the tests in his own lab, or if mutual consent for either a party is not there, then sample is generally sent to the third party. So this happens. But mostly what happens, if it is fine that this is my experience, I am telling you, I don't want to name the parties of the cases. But of course, they were very reputed party, and the cement was sent by a very reputed supplier to the consumer. But unfortunately, the consumer sent the sample to such a lab that was not a very well established lab. And all the tests carried out by that lab was very at random. It was really surprising to me because
I was a member of the supplier party at that time. So it was very random. No result was in line what was found in the manufacturer laboratory. So I requested the consumer uh, to let me visit the lab where the samples were tested, and I visited the lab. Am I audible, Satpathy Sahab? डॉक्टर साहब थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दीजिए। ओह अच्छा, ओके। नहीं तो बढ़िया है, आपको बिल्कुल आवाज पहुंच रहा है। हाँ, हिंदी सो मैं क्या बोला, जिन्होंने सीमेंट खरीदा था, ही वॉज अ गवर्नमेंट पार्टी, बिग गवर्नमेंट पार्टी। आई विल नॉट नेम द पार्टी बिकॉज दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। मैंने उनसे बोला कि भाई आपने सीमेंट जहाँ टेस्ट करवाया है जिस लैब में, आप मेरे को वहाँ पे जाने का परमिशन दो। So he was quite kind enough. He was the person of chief engineer level of that organization, and उन्होंने मेरे को एक अपना रिप्रेजेंटेटिव दिया और मैं उस लैब में गया जहाँ पे इस सीमेंट की टेस्टिंग हुई थी। एंड टू माय सरप्राइज, कोई भी चीज़ की जो टेस्टिंग थी वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं हुई थी, जिसके कारण ही जो सीमेंट के जो क्वालिटी रिजल्ट आए थे बहुत ही एट रैंडम आए थे। एंड अगेन देयर वाज अ बिग स्टोरी। फिर जो है सो जो कंज्यूमर थी पार्टी और मैं साथ में साइट पे गया, फिर सैंपल लिया, फिर जाके मैंने उस सैंपल को NTH में नेशनल टेस्ट हाउस में भेजा। देन that sample was okay. So my my point is that when you are a purchaser, you ensure doubly that if you are sending your sample to some laboratory, then you have to ensure very much कि भाई जहां आप सैंपल भेज रहे हैं वो लैब बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के जो प्रोसीडियर हैं वहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। दे आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ टेस्टिंग, दे आर फॉलोइंग द प्रोसीजर्स ऑफ टेस्टिंग। अदरवाइज सीमेंट की टेस्टिंग इतनी सेंसिटिव है साहब कि आप एक पैरामीटर भी आगे पीछे कर देंगे तो रिजल्ट में बहुत हेवी डिफरेंस आ जाता है, बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। दिस इज सच ए सेंसिटिव टेस्टिंग। सो रीजन ये है कि भाई अल्टीमेटली यू आर यूजिंग वाटर विथ सीमेंट, एंड मान लीजिए कि आपने वाटर की क्वांटिटी ही थोड़ी आगे पीछे कर दी, या मान लीजिए कि आपने क्योरिंग का टेम्परेचर ही आगे पीछे कर दिया, ह्यूमिडिटी ही आगे पीछे कर दी, देन द केस इज गॉन। सारी टेस्टिंग जो है सो एब्सर्ड आएंगी। तो इसको आपको बहुत डबली इंश्योर करना टाइम्स एंड अगेन आई एम स्टेटिंग दिस स्टेटमेंट कि जब आप कोई टेस्ट करवाएं अपने सीमेंट का, किसी थर्ड पार्टी से करवाएं या आप अपने यहाँ करवाएं, और यदि आप मैन्युफैक्चरर के यहाँ करवाएं, इफ़ यू वेस्ट कि नहीं भाई टेस्ट हमारे सामने हो, तो आपको ये देखना है कि जो कंडीशंस टेस्टिंग में होनी चाहिए ऑब्जर्व, वो होती हैं या नहीं होती हैं। यदि नहीं होती हैं तो उस टेस्ट की कोई भी रिलायबिलिटी नहीं होती है। बहुत सारे साहब मैंने अपने कैरियर में सीमेंट कंप्लेंट्स जो हैं सो हैंडल किए हैं। आई थिंक मोर देन 100 सीमेंट कंप्लेंट्स आई हैव handled, and aggregate complaints also in of course the number was not that high as was for cement, but most of the time जो erroneous result आते हैं that is due to wrong practices or wrong laboratory conditions. So this thing has to be kept into point. Okay, so I am going one more thing, एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि यदि आप सीमेंट की टेस्टिंग कराने चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो फॉर सीमेंट टेस्टिंग, और ये सीमेंट यदि आपने परचेज कर लिया है, आपके साइट पे आ गया है सीमेंट, तो आप ये बराबर इंश्योर कीजिए कि जो टाइम फ्रेमवर्क दिया हुआ है BIS से, उस टाइम फ्रेमवर्क के अंदर ही आप सैम्पलिंग करवाइए। अदरवाइज मैन्युफैक्चरर या सप्लायर मानेगा नहीं उसके रिजल्ट को।
उसमें फिर बहुत सारे डिस्प्यूट आ जाते हैं. So you have to get it sampled within 3 weeks of your receipt of the material. इस चीज को भी ध्यान में रखना है. और सीमेंट की जो सैम्पलिंग होनी चाहिए वो एज पर IS प्रोसीजर ही होनी चाहिए. वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं मिलेगा और रिजल्ट भी आपको करेक्ट नहीं मिलेगा. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. आई एम स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक थिंग. ये चीज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप इन्वेस्टिगेशन करते, क्योंकि प्रोसीडियर तो देखिए आप पूरा उस पे बुक लेके आप बैठेंगे तो प्रोसीडियर लाइन बाय लाइन आप देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं. आई अंडरस्टैंड विद द सिविल इंजीनियर्स अनटिल अनलेस यू आर डेडिकेटेड टू टेस्टिंग वर्क ओनली. यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी लेबोरेटरी का काम केवल देखते हैं तो ये पॉसिबल है, देन आई एग्री कि भाई आप कर सकते हैं. बट इफ यू आर साइट इंजीनियर तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन प्रोसीजर को पढ़ना ये करना तो ऑफ कोर्स इट कैन बी डन बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन जो मैक्सिमम गलतियां होती हैं यहाँ पे होती हैं, ये जो लेबोरेटरी कंडीशंस हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटेन नहीं होती है. तो आप देखिए हर एक के लिए अलग अलग लेबोरेटरी कंडीशन है. जहाँ पे अब देखिए मैंने एक जगह ह्यूमिडिटी 90% लिखा है, एक जगह 65% लिखा है ना. तो इसका क्या मतलब है? अब कुछ जो टेस्ट के जो कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ही किया है या सेटिंग टाइम का टेस्टिंग किया है, तो जहाँ पे कुछ एक्टिविटी करेंगे वहाँ पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% होनी चाहिए, ज़रूरी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जहाँ पे आप क्यूरिंग करेंगे वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% होनी चाहिए. तो इस चीज़ को इंश्योर करना है, ये दोनों मिक्स करके ही चलेगा. लेकिन ऐसा नहीं कि एक डिस्क्रिशन है कि चलो भाई एक 65 मान लिया और एक 90 मान लिया, ऐसे नहीं चलेगा. तो इस चीज़ को ये देखना है कि जो प्रोसीडियर में जो रिकमेंडेड टेस्टिंग कंडीशन है वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं. जहाँ पे आप मोल्ड कास्ट कर रहे हैं, कोई चाहे सेटिंग टाइम मोल्ड कास्ट कर रहे हैं या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोल्ड कास्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ह्यूमिडिटी 65 होना चाहिए. लेकिन जहाँ पे आप क्यूरिंग कर रहे हैं वहाँ पे 27 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 90 होनी चाहिए. कुछ क्यूरिंग में टेम्परेचर का रिकमेंडेशन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है, जैसे कि लाइम रिएक्टिविटी टेस्ट होता है. मैं एडमिक्सचर्स के बारे में जब डिस्कस करूंगा आपसे तो वहाँ पे मैं आपको बतलाऊंगा. सो हर एक टेस्ट की अपनी बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. एक तो ठीक है जो प्रोसीडियर है वो तो है ही, लेकिन टेस्टिंग कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू बी ऑब्जर्व. So these are the list of the equipments. Just I will brief them very in some words so that इनका purpose आपको समझ में आ जाए. Trials हैं, you know, this is used for hand mixing. Vicat apparatus, this is very important instrument because all the hydraulic testing starts with this Vicat apparatus. With the help of Vicat apparatus, we determine the normal consistency of the cement, and normal consistency determination is the starting point for so many tests like initial setting time, final setting time, leach atelier expansion, autoclave expansion, compressive strength. So that is very important instrument. I will show its picture also. Vibration machine, pocking rods and cube molds. Vibration machine is again very important. That is used for deaeration of the molds for the compressive strength testing. Cube molds, of course, it is okay. Bar molds and tempering rods. Bar molds are basically used for your drying shrinkage and this autoclave testing. Length comparator again used for your drying shrinkage
and the autoclave testing. Autoclave is the autoclaving machine. Its pressure maintained around 2 megapascal and 260 degree centigrade temperature. Leach atelier machine, leach atelier mold. This is used for leach atelier testing. I will explain what is the difference between leach atelier and autoclave testing in the ये coming. डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे एनबीसीसी का प्राइमरीली हमारा है हाई राइज बिल्डिंग या रीडेवलपमेंट है या ऑडिटोरियम है, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में ये क्या कौन सी जो इक्विपमेंट आपने मेंशन किए हैं इसका ज्यादातर यूजेस होता है? जस्ट इसमें सतपति साहब ऐसा है कि आपको कोई भी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, पहले उसकी सीमेंट की टेस्ट होनी चाहिए. दैट इज प्राइमरी थिंग. सीमेंट की टेस्ट होनी चाहिए, एग्रीगेट की टेस्ट होनी चाहिए, एडमिक्सचर की टेस्ट होनी चाहिए. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन तीनों की पहले टेस्ट होनी चाहिए. इसके बाद आपकी कंक्रीट की टेस्ट होनी चाहिए. कंक्रीट में भी जो फ्रेश कंक्रीट है ना, हार्डन कंक्रीट तो पोस्टमार्टम हो गया, वो बाद की टेस्ट है. तो पहले जो है सो फ्रेश कंक्रीट की टेस्ट होनी चाहिए. लेकिन फ्रेश कंक्रीट बनाने के पहले ये सारे टेस्ट जो हैं सीमेंट के और एग्रीगेट के होने चाहिए. तो जो मैं यहाँ दिखला रहा हूँ वो सीमेंट टेस्ट के लिए है. सो दिस विल बी applicable to all sorts of building, all sorts of structures. It starts from here only. Perfect. Okay. So this is the air permeability test. This is again very important. This is used for plane or fineness test. Flow table. For most of the table test, we require a particular consistency, and if we are not following the Y-cut apparatus in some of the test, Y-cut apparatus NC is not allowed. So in that case, flow tables are used. Test sieve, of course, they are clear. Planetary mixture, this is a substitute of hand mixing. With planetary mixing, we are mixing the different ingredients either in concrete or cement or mortar. Jolting apparatus, this is for again this is the part of the flow table test. We give certain jolts with this jolting apparatus and we measure the flow. Calorimeter, of course, this is for heat of hydration, not much interest to you. I will not go in that detail. Cylinder, this is very common. Water retention apparatus in the case of cement, it is not much important to you, but of course for aggregate, I will discuss it in detail. So not in aggregate, in fresh concrete, I will discuss the water retention and air content in detail. So these are the list of equipments for different physical testing. These are the different tests we will discuss. Almost dry sieving, this test is not as per cement standard requirement now. That is substituted by air permeability test. So I will go in more detail in air permeability, but for some material fineness by dry sieving and followed by wet sieving is also there, like material of fly ash. So but for cement, this is the air permeability that is more important, and we are following that test. Soundness test, consistency test, setting time, compressive strength, all these tests we will discuss. These are as per the standard. So this is the fineness by dry sieving. Actually, this test was in the standard prior to air permeability test. So cement was sieved on 90 micron sieve, and the residue was checked on that, and at that time some standard was given for the retention, but nowadays this test is not the part of BIS testing, but sometime in even the cement quality control, people are checking this, but its reliability is not that high. Ultimately, the standard says for the
fineness test, we have to go by the air permeability test. Sometimes dry sieving does not give very good result. So in that case, we are doing the weight sieving also. Means material is taken on the sieve and some water is added to that. So fines passes with the water and the residue is dried and weighed. So that is the weight sieving. But once again, I am repeating that now this test is not as per GIS requirement of cement. But of course, if you are not having any facility on this site for the air permeability, then just for an idea, you can go for the sieving test either by dry sieving, and if you are having a problem in dry sieving, then you can adopt the wet sieving method also. Yeah, this is important test. Actually, the equipment used is, I will show you. This was the equipment I was mentioning. This is the air permeability apparatus used for surface area determination. Actually, what we do that we make a bed of cement here in this cell, and in this tube there is a liquid filled. Some organic liquid is there, and we suck the liquid up to the certain point, and there are 2 points marked here. It is not visible here, somewhere here and somewhere here. And we take the time, we note the time, what is taken when we release the pressure, suction pressure, and what is the time taken between the 2 points that liquid takes to move. And based on that time, the calculation of surface area is done. This is called air permeability apparatus, and this is the surface area determination. So basic thing is that if cement is more fine, then it will form very compact bed. So the time taken to release the air and consequently the liquid to pass between the 2 mark will be very long, and so the surface area will be higher. If the cement is coarser, then the time taken will be less because the number of pores will be more due to coarseness of the material, and that will give you the lower surface area. So this is the principle of air permeability method of surface area determination. One more thing I wanted to mention, that is a setting time. And before setting time is standard consistency. Standard consistency is, as I told you, this is the starting point of the cement testing. We take 500 gram of cement, and we start any amount of water initially, and we mix it and put it into a mold. This is the mold, this one. We fill up the mold with proper layering with the tamping rod up to the edge of the mold, and then there is a plunger. This is the Y-cut apparatus plunger. You can mark, you can see here at this point, this is a sort of needle, but for the consistency testing, that is a thicker plunger of around 2 mm dia, and that plunger is released, and that it is allowed to penetrate the height of 5 to 7
mm from the bottom, means from the bottom this plunger should be 5 to 7 centimeter, and until we get that value 5 to 7 from the bottom, we keep adding water to that, because if some less water is added, then plunger will be held at the upper side. It will be more than 5 to 7, it may be 10, it may be 12. But when exact amount of water is added, then it will come only to the 5 to 7, and that quantity of water is known as normal consistency, as it is expressed in terms of percentage. So we divide the amount of water by 500 and then multiply by 100, so we get the normal consistency. Now this normal consistency is the starting point for so many tests. Like, just see, this is a setting time. So we take 500 gram cement and we take 0.85% of standard consistency water. If there is a value of standard consistency like 27, then 27 into 0.85% of water will be taken. And as we have taken 500 gram of sample for testing, so we will multiply this value, means normal consistency, into 0.5 into 5. So we will get that value of water, and that is to be added for testing the setting time of cement. And again, in this case, the plunger, of course, in this case, the plunger dia is very small, that is, its area is around 0.01 centimeter square area, and that has to plunge by the same height, 5 to 6 and when that height is attained, because when initially you mix water, the complete plunger will dip, but that is not desired. It should stop at 5 to 6 height from the bottom, and when this point is achieved, then you get the initial setting time. When initial setting time is achieved, then there is change in the needle or plunger. In that case, there is a round plunger, round shaped plunger, and at the moment the plunger, with the elapse of time, the plunger does not leave any marka on the cement paste, that time is noted, and that time is the final setting of the cement. So this is the initial setting and final setting. Means you start with initial setting, and with the same mold you get the final setting time of cement. So this was setting time is tested. Now fineness I have discussed, this one. Now soundness. Now there are two types of soundness we are testing in cement. One is leach atelier and another is autoclave. What is the difference between the leach atelier and autoclave testing? Actually, the leach atelier testing is done with respect to free lime present in the cement, and autoclave testing is done with respect to magnesia present in the cement. In last session, I have mentioned that magnesia is very harmful because it takes years together in hydrate, and its hydration causes the expansion, volume change in the system, and that develop stress, and that causes unsoundness. But leach atelier, that is caused by free lime, and its hydration does not take that much time. So the test methods are different for both. Leach atelier test is not
carried out in very aggressive condition, whereas autoclave test is carried out in very aggressive condition, like 2 megapascal pressure and 216 degrees centigrade temperature. The soundness test is maximum carried out by boiling the sample at 300 degrees centigrade temperature, but that is at the normal pressure, atmospheric pressure. So the test is not that rigorous. So these are the two tests. Soundness by Le Chatelier means that is due to free lime, whereas the soundness by autoclave is by your magnesia. This is the mold for Le Chatelier test. For Le Chatelier, water requirement is 0.78% of standard consistency water. This is the water requirement for Le Chatelier test, and the molds are this is the mold. These are the two split needle. So first the cement paste is filled in this, and this complete mold is kept at 90% relative humidity and 27 degrees centigrade temperature. This is kept for 24 hours, and after 24 hours the complete set is brought out from the humidity cabinet, and this gap between these 2 points is measured, and thereafter the complete mold is put in boiling water and for 3 hours, and after boiling for 3 hours again this is brought out and cooled, and this distance is measured. So the difference in the gap between these 2 needles before boiling and after boiling, that gives you the Le Chatelier expansion. The limit is 10 mm. Soundness test, this is the water requirement is the consistency water requirement. Whatsoever is the consistency water, you are using that water, and mold for this is a mold of 250 mm by 25 mm by 25 mm, मतलब 250 mm लंबा है और 25 mm चौड़ा है और 25 mm गहरा है. ये मोल्ड होता है. इसमें पेस्ट बना के और इस मोल्ड में डाल दिया जाता है 25 by 25 by 250 में. इसको फिर 27 plus minus 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे 24 आवर्स रखा जाता है. इसके बाद इसकी आउटोक्लेविंग की जाती है. दिस इज द वेरी रिगरस कंडीशन, 216 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 2 MPa फॉर 3 आवर्स. इसके बाद फिर उसको निकाल के हाँ, इसमें डालने के पहले, आउटोक्लेविंग करने के पहले 24 घंटा जो हमने रखा है इसको कैबिनेट में जो रखा है ह्यूमिडिटी कैबिनेट में, उसमें निकालने के बाद इसका लेंथ कंपैरेटर से लेंथ चेक किया जाता है. उस लेंथ को, इनिशियल लेंथ को नोट कर लेते हैं. फिर आउटोक्लेविंग के बाद इस कंडीशन में इसकी हम लेंथ नोट करते हैं और इसकी लेंथ मेजर करते हैं एंड the difference in the length percentage is taken, and that is the autoclave expansion test. So again, should I repeat the soundness test, autoclave test? Okay, just I will repeat in 2 minutes if you have missed something. इसमें आप जो कंसिस्टेंसी वाटर होता है उतना ही वाटर सीमेंट में मिक्स करके 400 ग्राम सीमेंट में मिक्स करके आप पेस्ट बनाते हैं
और उसको 25x25x250 mm मोल्ड में डालते हैं उसको, और उसका अच्छी लेवलिंग करने के बाद आप इसको 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्वेरिंग करते हैं फॉर 24 आवर्स। इसके बाद उस मोल्ड को निकाल के आप लेंथ कंपैरेटर से उसकी लंबाई को आप मेजर करते हैं। इसके बाद आप इसकी आउटोक्लेविंग करते हैं इस कंडीशन में। दिस इज अराउंड 216 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 2 MPa प्रेशर फॉर 3 आवर्स। फिर इसको बाहर निकाल के आउटोक्लेविंग मशीन से आप उसका फिर लेंथ मेजर करते हैं, और दोनों लेंथ का जो डिफरेंस आता है उसकी परसेंटेज हमारी आउटोक्लेव एक्सपेंशन बतलाता है। सो द लिमिट इज 0.8%. This is the soundness autoclave testing machine. But one interesting thing I am telling you कि ये दोनों टेस्ट जो हैं, LC टेस्ट एंड आउटोक्लेव टेस्ट, ये काफ़ी परेशान करते हैं, मीन्स कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसने BIS ने इसमें मान लीजिए कि ये फेल हो गया, LC टेस्ट आपका फेल हो जाता है, मीन्स इसका एक्सपेंशन LC टेस्ट का 10 mm से ज़्यादा आ जाता है और आउटोक्लेव टेस्ट का 0.8% से ज़्यादा आ जाता है। तो BIS ने एक प्रोविज़न रखा है कि आप उस मटेरियल को 1 वीक तक एरेट कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में, बाहर हवा में उसको रख दीजिए फॉर 1 वीक, और इसके बाद आप उसकी फिर से रीटेस्टिंग कीजिए। और रीटेस्टिंग के बाद यदि उसका लीच एटेलियर 6 mm आ जाता है और आउटोक्लेव टेस्टिंग 0.6% आ जाता है, तो फिर इस सैंपल को ओके मानते हैं हम लोग, और इस सीमेंट को आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें 2 स्टेप में होता है। एक तो यदि आपका फर्स्ट टेस्ट में इट पासेस द LC टेस्ट एंड आउटोक्लेव टेस्ट, इट्स फाइन। लेकिन यदि ये पास नहीं हुआ तो फिर हम उस तरह का एरेशन इसमें हम करते हैं, और एरेशन करने के बाद फिर रिवाइज्ड वैल्यू होती है, वो LC के लिए 6 mm होती है और आउटोक्लेव के लिए 0.6% होती है। सो दिस थिंग इज टू बी केप्ट इनटू द माइंड, कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि साउंडनेस में फेल हो गया है तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दें, या आपके टेस्ट रिपोर्ट में कभी कभी ऐसा आएगा लिखा हुआ कि बिफोर एरेशन दिस इज द वैल्यू एंड आफ्टर एरेशन दिस इज द वैल्यू। सो यदि आफ्टर एरेशन भी वो कंफॉर्मिटी होती है 6 mm एंड 0.6 mm की, देन इट इज सपोज टू पास द मटेरियल, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने काम में। Yes, compressive strength test again very important, लेकिन आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मोल्ड यूज होता है आपका कंक्रीट वाला नहीं होता है, इसमें 70 mm वाला मोल्ड यूज होता है, आपका 150 mm वाला यूज नहीं होता है। पहला चीज तो ये है, ये ध्यान रखना है। और इसमें 1-2 सावधानियां और भी रखनी है। पहला तो इसमें वाटर रिक्वायरमेंट है। वाटर रिक्वायरमेंट देखिए मैंने दिया हुआ है P/4 + 3 × 8। ऐसा क्यों है P/4 + 3? P मतलब जहाँ पे P कंसिस्टेंसी वाटर जो आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मान लीजिए कि ये आपका फर्ज कीजिए कि 36 आ गया, हालांकि 36 इज टू हाई, दिस इज द इमेजिनरी वैल्यू आई एम टेलिंग यू। 36 होता नहीं है नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 होगा या मैक्सिमम 30 होगा। लेकिन मैं कन्वीनियंस के लिए ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि 36 है, देन 36 डिवाइडेड बाई 4, देन दिस इज 9, सो 9 + 3 12, सो 12 × 8 96, इतना ml आपको पानी लेना है आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए। अब 8 क्यों लेते हैं, ये मामला है। 8 इसलिए लेते हैं कि आप 200 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसका 3 टाइम्स आप सैंड लेते हैं, लेकिन सैंड इसमें कोई भी सैंड नहीं यूज कर सकते हैं आप, आपको इसमें इनोर सैंड यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनोर सैंड की अपनी ग्रेडिंग है, वो ग्रेडिंग आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बोलते हैं उसको। तीनों का इक्वल परसेंटेज आपको लेना है 33.3।
इसकी ग्रेडिंग में फर्स्ट ग्रेड आपका 2 to 1 mm है, सेकेंड ग्रेड आपका 1 mm to 500 माइक्रोन है, और थर्ड ग्रेड आपका 500 माइक्रोन टू 90 माइक्रोन है। तो ये तीनों का इक्वल अमाउंट लेते हैं आप, और 200 ग्राम सीमेंट के साथ, यानी 200 ग्राम आपने सीमेंट लिया और 200 ग्राम आपने तीनों सैंड लिया, तो ये आपका 800 ग्राम हो गया। इसलिए टोटल जो भी वाटर रिक्वायरमेंट होगा परसेंटेज का, वो आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज द फैक्टर। एक चीज तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें बहुत सावधानी से आपको वाटर ऐड करना है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन में इस चीज को मेंशन किया था कि एब्राम्स लॉ क्या बोलता है। स्लाइट भी यदि वाटर सीमेंट रेशियो में अनअप्रोप्रिएट वाटर सीमेंट रेशियो आ गया तो आपको बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन देगा, रिजल्ट का गलत रिजल्ट देगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इस चीज में। दूसरा चीज एक और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जब मोल्ड में डाला इसको, 3 मोल्ड्स हम बनाते हैं इसकी, आप मालूम है आपको कि 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज हम लोग 3 तरह की टेस्ट करते हैं, और तीनों टेस्ट के लिए हम लोग 3-3 मोल्ड बनाते हैं। मतलब एक टेस्ट यदि आप कर रहे हैं तो 3 और 3 6 और 3 9 मोल्ड आपको बनाना है आपको एक तरह से। तो 3 की टेस्ट 3 डेज में होगी, इसके बाद 27 डेज में 7 डेज में होगी, फिर 28 डेज में होगी। अब जो है सो आपने मोल्ड बनाया, मोल्ड बनाने के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इसका वाइब्रेशन का। ये देखिए वाइब्रेटर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का वाइब्रेटर। देखिए वाइब्रेटर है, यहाँ पे आपने मोल्ड में मटेरियल डाला और इसको आपको वाइब्रेट करना है प्रॉपरली। यदि वाइब्रेट नहीं करेंगे तो ये आपका सही नहीं होगा। और वाइब्रेशन काफी हाई आरपीएम पे रहता है, 12,000 प्लस माइनस 400 आरपीएम पे इसका वाइब्रेशन किया जाता है 2 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी एयर इंट्रैपमेंट है वो सब बाहर निकल जाए। और इसके बाद आप इसको 24 आवर्स के लिए रूम में छोड़ दीजिए, जो आपका 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ पे रखिए। इसके बाद 1 दिन के बाद आप इसको फिर जो है सो क्यूरिंग चैम्बर में वाटर में आप डालिए। वहाँ पे आपको मोर देन 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन होनी चाहिए। फिर आप 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज में इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में आप टेस्टिंग कीजिए। तो ये आपका कंप्लीट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का मेथड है। ये काफ़ी क्रिटिकल मेथड है। इसमें देखिए इसमें 10% से वेरिएशन किसी भी क्यूब में नहीं होना चाहिए एवरेज से। यदि उससे ज़्यादा वेरिएशन होता है तो इसका मतलब है कि आपका वो क्यूब सही नहीं बना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, BIS ने एक लिमिटेशन दिया है। आजकल डेज में नहीं लोग बोलते हैं, आजकल आवर्स में क्वेरिंग बोलते हैं। तो बेसिकली करीब करीब वही आता है 24, 72 एंड दिस। यदि आप डेज को आवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर्स आ जाते हैं। BIS स्टैंडर्ड पहले डेज में था, अब जो है सो आवर्स में इन लोगों ने कर दिया है। सो दिस इज द स्मॉल चेंज दे हैव मेड। सो दिस इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग। देखिए एक आपका प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ है कि नहीं सैंपल का प्लेटन के साथ। एक यदि आपका सही क्यूब बना है कास्टिंग के टाइम में, तो आपको डंबल शेप में आपको टूटा हुआ मटेरियल मिलना चाहिए। जो क्यूब टूटता है वो इस शेप में मिलना चाहिए। यदि इस शेप में नहीं मिला है, इट मीन्स कि नहीं, आपका जो प्लेसमेंट हुआ है क्यूब का वो सही नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैसनरी सीमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें बस केवल जो वाटर ऐड करने का तरीका है वो फ्लो बेसिस पे है। और जो मैंने जॉल्टिंग टेबल बतलाया था उस पे मटेरियल सैंपल को रख के 25 जॉल्ट देने हैं 15 सेकेंड में, और उस पे इसका फ्लो आपका 110 प्लस माइनस n होना चाहिए, प्लस माइनस 5% होना चाहिए।
उसमें आप और कोई कंसिस्टेंसी वाला मामला नहीं अप्लाई करते हैं, इसमें फ्लो से ही लेते हैं। इस फ्लो का मटेरियल लेके फिर आप जो है सो फिर उसकी मोल्ड्स बनाते हैं और मोल्ड्स बना के और फिर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं। rest of the part is the same. Now come to drying shrinkage. Drying shrinkage is again a very important area और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एरिया है स्पेशली ब्लेंडेड सीमेंट पीपीसी के लिए। इसमें क्या करते हैं कि जो मोल्ड यूज होता है, मोल्ड आपका सेम यूज होता है जो आपने आउटोक्लेव एक्सपेंशन वाले में किया था। ये सेम मोल्ड आपका यूज होगा। देखिए दिस इज स्लाइटली 282 नहीं, 215 होगा। ये सेम मोल्ड रहता है, हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली। और इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी जो हम फ्लो वाटर ऐड करते हैं वो फ्लो बेसिस पे हम ऐड करते हैं। 115% इसमें हम फ्लो लेते हैं विथ जॉल्टिंग ऑफ 25 इन 15 सेकेंड्स। इसके बाद उस मोल्ड में हम उसको फिल कर देते हैं। इसके बाद इसको हम पहले 24 आवर्स ड्राई कंडीशन में रखेंगे, जो लेबोरेटरी का आपका 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसके बाद 48 आवर्स हम इसको वाटर में रखते हैं। 48 आवर्स वाटर में रखने के बाद फिर इसको 7 डेज की हम क्वेरिंग करते हैं। 7 डेज फिर हम इसकी फर्दर क्वेरिंग करते हैं। इसकी क्वेरिंग 7 डेज नहीं 6 डेज करते हैं। 6 डेज करते हैं इसकी डिमोल्ड एंड क्योरिंग इन वाटर करते हैं। इसके बाद फिर उसको निकालने के बाद इसको 28 डेज तक इसका देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। आप बहुत इसको रिग्रेस कंडीशन में रखते हैं, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रखते हैं और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखते हैं। इसको रिग्रेस ह्यूमिडिटी में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको ड्राई करना है। ड्राई होने के बाद इसमें कितना श्रिंकेज होता है वो आपको देखना है। इसमें आपने जब इसको 28 डेज तक 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रखा है, उसके पहले इसका लेंथ कंपैरेटर से बिल्कुल सेम मेथड है जो आउटोक्लेव का मेथड है। सेम मेथड से आप उसका लेंथ मेजर करते हैं और फिर जब एक कंप्लीट पूरा हो जाता है 28 डेज तक, तो फिर उसको बाहर निकाल के उसका हम लेंथ मेजर करते हैं और फिर दोनों का परसेंटेज के टर्म में ये निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं और जो भी परसेंटेज में उसकी वैल्यू होगी वो आपका ड्राई श्रिंकेज बतलाएगा। So this is the dry shrinkage. Density, this is not exactly density, we determine the specific gravity of cement. Density, this is wrongly mentioned, it should be specific gravity. और ये हम ली चैटेलियर बॉटल से करते हैं। एक आता है ली चैटेलियर बॉटल, ये सिंपल है। जनरली जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी मटेरियल का करते हैं वो वाटर डिस्प्लेसमेंट से करते हैं, लेकिन ये चूंकि सीमेंट तो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, इट विल रिएक्ट विथ वाटर। सो ऐसे केस में हम इसकी जो टेस्टिंग करते हैं वो केरोसिन डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। तो जो भी सीमेंट का मास लिया और जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम लिया, पहले लिचेटलियर बॉटल में सीमेंट का पहले हम केरोसिन वाटर में पूरा सीमेंट ले लेते हैं। इसके बाद फिर उसमें हम केरोसिन ऑयल डालते हैं, फिर उसका हम वेट मेजर करते हैं। इसके बाद कंप्लीट सिस्टम को खाली करके ओनली केरोसिन से हम उसको फिल करते हैं, फिर उसका हम वेट लेते हैं, फिर केवल केरोसिन से भरा हुआ वेट और फिर जो सीमेंट प्लस केरोसिन का वेट है उसमें से सीमेंट का वेट हटाने के बाद जो वेट बचता है वो माइनस कर देते हैं, और वो जो माइनस करने के बाद वेट आता है वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो होता है वो उसको फिर वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और उससे फिर सीमेंट में उसको हम डिवाइड कर देते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से। सो दैट विल गिव यू द स्पेसिफिक ग्रेविटी. दिस इज नॉट द डेंसिटी, आई हैव गिवन यू द exact
proceed here. नीचे clear bottle का मेरे पास है नहीं. So this is simply the liquid displacement method. Nothing else. In place of water, only we are taking the kerosene liquid. So with this we can determine the specific gravity of cement. Air content of motor I will not discuss. This is not of much interest to you. This is very important phenomena, false set. आपके साइट में कभी कभी प्रॉब्लम होता होगा कि आप जब सीमेंट मिक्स करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कंप्लीटली सेट हो गया है. सो इसका क्वालिटेटिव मेथड में बतलाता हूं कि किस तरह से आप इसको पकड़ेंगे कि क्वालिटेटिव ये फॉल्स सेट हुआ है या नहीं हुआ है. यदि सीमेंट ऐड करने पे मटेरियल का या सिस्टम का टेम्परेचर एबनॉर्मस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो चांसेस हैं कि वो फॉल्स सेट होगा. आप उसको हाथ से टच नहीं कर सकते हैं. आप सीमेंट थोड़ा सा बाहर ले लीजिए किसी प्लेस में और उसमें आप वाटर ऐड कीजिए और फिर उसको आप टच कीजिए और ऐसा लगे कि आप इसको हाथ से टच नहीं कर सकते हैं, तब ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फॉल्स सेट होगा. जब फॉल्स सेट होगा तो आपको लगेगा कि सीमेंट इमीडिएटली जो है वो सेट हो गया है. लेकिन पानी डालते के साथ सीमेंट यदि इमीडिएटली सेट हो गया है तो दो रीज़न हो सकते हैं. पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि ये रियली फॉल्स सेट नहीं, क्विक सेट है. क्विक सेट का मतलब ये है कि इसमें आपने जिप्सम जितना होना चाहिए उतना इसमें जिप्सम मैन्युफैक्चरर रेट नहीं डाला है, वो क्विक सेट हो गया और उस समय भी बहुत हीट निकलेगा. यदि बहुत ज़्यादा हीट निकल रहा है तब तो समझिए कि ये क्विक सेट है. लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हीट नहीं निकल रहा है तो चांसेस ऑफ क्विक सेट के बहुत कम होते हैं. ऐसी हालत में जब आपको लगे कि ये मटेरियल सेट हो रहा है तो उसमें थोड़ा एडिशनल वाटर डालिए और एडिशनल वाटर डालने के बाद फिर उसकी रीमिक्सिंग कीजिए. रीमिक्सिंग करने के बाद यदि ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी आ जाती है, नॉर्मल फ्लो इसका आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये फॉल्स सेट था, एक क्विक सेट नहीं था. तो फॉल्स सेट और क्विक सेट में आप फॉल्स सेट वाले सीमेंट को आप यूज कर सकते हैं एडिशनल वाटर डाल के और फिर इसमें मिक्सिंग करके इसकी प्रॉपरली आप इसको यूज कर सकते हैं. इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. लेकिन यदि क्विक सेट हो गया यानी आपको शुरू में पानी आपने डाला और वो सेट हो गया और सिस्टम बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, गर्म हो गया है, तो आप उसको हाथ से टच नहीं कर पा रहे हैं, तब तो फिर मुश्किल है. तब फिर वो क्विक सेट है, फिर आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं. फिर आपको ये मैन्युफैक्चरर से आपको बात करना पड़ेगा कि भाई ये जो है सो जल्दी सेट हो गया है. सो दिस इज ए बिट ट्रिकी इशू. ये आपको साइट पे इसको इस तरह से पहचानना है कि ये क्विक सेट है या फॉल्स सेट है. क्विक सेट है तो फिर उसका आपके पास कोई उपाय नहीं है, या तो फिर आप जिप्सम डालो, दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस है. आपके साइड पे मिक्सिंग बराबर हो पाए या नहीं हो पाए. जनरली ऐसे केस में जो है सो कंप्लेन रेज हो जाते हैं और मैन्युफैक्चरर इसका केयर करता है. लेकिन यदि फॉल्स सेट है देन यू कैन मैनेज दिस थिंग. ये फॉल्स सेट होता क्यों है एक्चुअली? फॉल्स सेट फॉल्स सेट होने का रीजन ये है कि जब सीमेंट बनाया जाता है और उसमें जिप्सम एज ए रिटार्डर आप डालते हैं और उस समय यदि टेम्परेचर सीमेंट ग्राइंडिंग का बढ़ गया तो जिप्सम जो है सो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है. यानी उसमें कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O ये वाला मटेरियल हो जाता है. ये जो आप हड्डी वगैरह टूटती है लोगों का प्लास्टर होता है तो ये मटेरियल यूज होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O. तो इसके कारण ही फॉल्स सेट होता है. तो इसलिए इसमें जब आप इसमें जिप्सम डाला हुआ है, जिप्सम की क्वांटिटी कम नहीं है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये हाफ मॉलिक्यूल वाटर में कन्वर्ट हो गया. 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसकी जगह ये हाफ मॉलिक्यूल हो गया है. तो यही फॉल्स सेट का इंप्रेशन देता है. इसलिए जब आप एडिशनल वाटर ऐड करते हैं then you get it converted to gypsum and that will give you the
नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉल सेट जो है वो इतना वरी का इशू नहीं है, इसमें प्रॉपर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत साइड पे करनी पड़ जाती है, अदरवाइज ये शॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन क्विक सेट में आपके पास कोई इशू नहीं है। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ये आपके उतने यूज का नहीं है, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको दिया है, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल implication. Fineness by weight sieving I have explained you कि कुछ मटेरियल जो बहुत फाइन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ्लाई ऐसे जो बहुत फाइन हो गया, तो उसको आप ड्राई सीविंग करेंगे तो पास नहीं होगा, स्पेशली जो स्मॉलर साइज के सीव्स हैं, 45 माइक्रोन के मान लीजिए कि सीव है, कुछ जगह फ्लाई ऐश का रिकमेंडेशन है कि 45 माइक्रोन सीव में उसकी आप टेस्टिंग करें, है कहीं कहीं पे इसका रिकमेंडेशन है। तो वैसी केस में आप इसकी ड्राई सीविंग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। वाटर ऐड करने के बाद मीन्स आप सीव पे मटेरियल ले लीजिए और फिर उसमें वाटर पोर कीजिए। वाटर पोर बेसिकली आप वाटर टैप के अंदर कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो भी फाइन्स हैं वो वाटर फ्लो के साथ नीचे सीव आउट हो जाए, और इसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसको कलेक्ट करके आप ओवन में ड्राई कर लीजिए और उसको आप वे कर लीजिए, तो वो आपको जो है रेसिड्यू देगा, फाइननेस आपको वो बतलाएगा। दिस इज बेसिकली फॉर द वेरी फाइन मटेरियल्स लाइक फ्लाई ऐश, इफ यू वांट टू टेस्ट इट एट lower sieve size. So this is all about. So this is the area of cement testing for the cement engineers that are really useful to you. Of course, there are so many other tests, heat of hydration and all those things, air retention test. I have not discussed with you as can you see my slides, everyone? Yes, sir. I think something is coming on my screen. कहीं का ये आ रहा है, कोई presentation हो रहा है। Some interference is there. Satpati Sahab, are you there? Mr. Ramesh, are you there? रमेश जी आप हैं? इसको थोड़ा देखिए, कहीं से इंटरफेरेंस आ रहा है। आई थिंक sir, I have muted Devashish Satpathy sir because interference from his side. So you are Ramesh, Mr. Ramesh? No sir, this is Krishnpal Chauhan, the IT guy. कृष्णपाल जी, वो कहीं से आ रहा था, कुछ अभी स्क्रीन आ रहा था कहीं का, कहीं कोई प्रेजेंटेशन वगैरह हो रहा था। ओके, इट्स फाइन नाउ इट हैज गॉन। ओके, यस, so I wanted to present all these things for cement testing. If any question on this part, then this is welcome from the participant. Otherwise you will also forget और फिर कहीं और फ्लो में रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। पार्टिसिपेंट से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो खुद को अनम्यूट कर ले और अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या अभी हम क्वेश्चन अगर किसी का है तो ठीक है, नहीं तो हम 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि आप सबको तो ब्रेक नहीं चाहिए। आप म्यूट अनम्यूट करके वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, बट ट्रेनर तो जा नहीं सकते, तो कंटिन्यूअसली सिस्टम में बैठे हैं। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मणिकेश्वर सिंह सर बोल रहे हैं, बेंगलोर साइड से सर। ओके सर, टेस्टिंग तो सर बहुत सारा है, लेकिन इधर में काम थोड़ा छोटा मोटा है, तो उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट प्रिफर करना ये रहेगा? टोटली टेस्ट कराने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बोलते हैं काम कम है, इसके लिए इतना सारा टेस्टिंग का खर्चा ज्यादा आ जाएगा। और इधर 3 नंबर सर वॉच टावर बनना है केवल सिविल में। क्या बनना है? वॉच टावर है सर। ओके, कितनी हाइट है? हाइट है सर 6 मीटर का। 6 मीटर, ओके। 6 मीटर मतलब करीब 20 मीटर्स हो गया।
देखिए ऐसे मिनिमम टेस्टिंग तो आपको उसके लिए जहाँ तक सीमेंट टेस्टिंग का सवाल है, सीमेंट सर। टेस्टिंग तो मेनली आपको एक फाइननेस जरूर टेस्ट करवानी चाहिए, आपको एक सेटिंग टाइम जरूर टेस्ट करवानी चाहिए, और एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जरूर करवानी चाहिए। 3 टेस्टिंग तो करवानी चाहिए। कोई भी बेसिक कंस्ट्रक्शन में यदि आप काम कर रहे हैं तो ये 3 टेस्टिंग तो होनी जरूरी है। दिस इज उसके मस्ट। अलावा सर एग्रीगेट वगैरह या सैंड वगैरह वो यस, वो तो होगा ही, वो टेस्ट तो हम्म, होगा ही। आई विल कवर दैट पोर्शन इन माय सेकंड प्रेजेंटेशन। मैं अभी कल सीमेंट रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि सीमेंट के लिए आपको ये मिनिमम 3 टेस्ट करवाना है। बाकी एग्रीगेट के लिए आपको उसकी तो ग्रेडिंग जैसे करवानी पड़ेगी, उसका सर वाटर एब्जॉर्प्शन आपको चेक करवा, ये सारी चीजें करवानी पड़ेंगी। जैसे सर लेकिन सीमेंट इधर लॉट में आता है सर, तो हाँ, मतलब इधर सीमेंट जो लाते हैं सर ये सभी, तो इनका मैक्सिमम 50 बोरी या 100 बोरी के आसपास में रहता है एक बार में। ओके। तो जितनी जितनी बार वो आएगा उतना बार उसका चेक कराना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, यदि एक लॉट का बना हुआ सीमेंट है, हम्म कितने डिफरेंस में आप मंगाते हैं सीमेंट? वो मतलब कि 20 दिन का, महीने दिन का अंतर में ये रहता है। वो तब तो चेंज होगा। आप एक काम किया करो, हाँ इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है हम्म कि जहां से सीमेंट आता है, सीमेंट आप परचेज करते हैं ना? नहीं नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्टर करता है सर। ओहो, कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो फिर हाँ आप एक काम करो, उसको कॉन्ट्रैक्टर को आप बताओ। एम हम्म, आई ऑडिबल? हाँ हाँ सर। हाँ, आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि आप इसका मेरे को टेस्ट सर्टिफिकेट दीजिए। हम्म जो जहां से उसने सीमेंट परचेज किया है, उसका हाँ उससे सर। टेस्ट सर्टिफिकेट मांगिए। ओके? हम्म हम्म, क्योंकि आप इतना जल्दी जल्दी मंगाएंगे, और आपके यहाँ तो टेस्टिंग फैसिलिटी तो है नहीं, नहीं है सर। नहीं है ना? तो आप उसका और टेस्ट नहीं है सर्टिफिकेट सर। मांगिए कम से कम। क्योंकि देखिए, आपका और 15 दिन का डिफरेंस में आ रहा है, तो इतना जल्दी तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं आएगा आपका। 3 हाँ डेज नहीं का है सर। मैक्सिमम आएगा या 7 डेज का आएगा। हम्म और हर एक 15 दिन में आप कितनी टेस्टिंग करवाएंगे? तो इट इज बेटर कि आप उससे जो कंपनी ने सीमेंट सप्लाई किया है, उसका टेस्ट हम्म सर्टिफिकेट उससे जरूर मांगिए आप। हम्म, ठीक है? ठीक है सर। और हाँ इसके अलावा जो सर सीमेंट वगैरह का टेस्ट करने के लिए जो लैब हम प्रीफर कर रहे हैं सर, हाँ। तो वहाँ पे जाके हमको टेस्ट कराने, टेस्ट मतलब सामने करा के देखना है ये कि मतलब वो जो एजेंसी कर रही है उसका फिर केवल टेस्ट सर्टिफिकेट लेने से हो जाता नहीं, ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या एग्रीमेंट है? आपने है? उसको बोला है कि हम लोग ज्वाइंट सैंपलिंग करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो ज्वाइंट सैंपलिंग का यदि आपके पास कोई क्लाउज नहीं है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई एक टेस्ट आप कहाँ करवा रहे हो, ठीक है, मैं वहां पे जाके देख सकता हूँ। अच्छा लेकिन अच्छा। एक चीज क्लाउज में आपको डलवाना चाहिए, यदि आइंदे से यदि आप टेस्ट करवाएं तो हम्म इस तरह का केस हो, तो आप एक क्लाउज डाल दीजिए कि ज्वाइंट हम्म सैंपलिंग होगा, और जहां भी आप टेस्ट करोगे उसका रिजल्ट जाके मैं देखूंगा। अच्छा दिस ठीक है। केयर कैन बी टेकन। लेकिन हम्म अभी आप रिक्वेस्ट कर, जनरली कोई मना नहीं करता है। हम्म क्या है कि देखिए, पहली चीज तो ये है कि जहां वो टेस्ट कर रहा है, उस लैब को आप देखिए कि वेदर दैट इज द आईएस अप्रूव्ड लैब और नॉट। इस चीज को आप हम्म, जरूर ध्यान में रखिए। वो जो सैंपल और टेस्ट जहां करवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर आपका, उससे हाँ सर। पूछिए कि आईएस अप्रूव्ड लैब है कि नहीं है। हम्म क्योंकि आईएस अप्रूव्ड लैब नहीं है और कभी प्रॉब्लम होने से फिर दिक्कत हो जाएगी। हम्म रिजल्ट बराबर आईएस अप्रूव्ड लैब का, बीआईएस अप्रूव्ड लैब का ही होना चाहिए, तभी उसकी कोई वैल्यू होती है। नहीं तो आजकल तो बहुत सारे लैब खुले पड़े हुए हैं, कोई कहीं भी हम्म चला जाता है, कोई बिना टेस्ट किए हुए ही रिजल्ट दे देता है। सो दैट इज अ वेरी रिस्की अफेयर। सो ज़्यादा अच्छा है कि आप देखिए कि आईएएस की ऑडिट होती है उस लेबोरेटरी की नहीं, आईएएस का रिप्रेजेंटेटिव आके वहाँ उस लैब को विजिट करता है कि नहीं, कोई रिकॉर्ड है कि नहीं वहाँ पे आईएएस ऑफिशियल्स का। तो ये सारी चीज़ आप इंश्योर कर लीजिए, तभी आप पक्का हो सकते हैं कि हाँ भाई ये जो टेस्ट रिपोर्ट है इसकी ऑथेंटिसिटी है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और हम्म आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट दें तो आप हम्म उसमें एक क्लाउज जरूर रखें कि जो मटेरियल आप सप्लाई करोगे,
ये जो है सो आपकी ज्वाइंट सैंपलिंग होगी या हम इसकी जो है सो ज्वाइंट टेस्टिंग करेंगे। इस तरह का क्लाउज रखना चाहिए आपको। बट आई एम श्योर आपका जो टेस्टिंग लैब है वो आपको मना नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर भले मना कर दे, यदि कॉन्ट्रैक्टर मना कर रहा है इसका मतलब देन यू हैव टू बी केयरफुल व्हाई वो क्यों मना कर रहा है। जैसे अभी क्या हुआ सर, एक क्यूब टेस्टिंग के लिए हमने लेटर्स भी नहीं दिया और फिर भी वो हमको टेस्टिंग रिपोर्ट दे रहा है करके। किस चीज का? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का? हाँ सर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का व्हाट, कंक्रीट और सीमेंट? हाँ सीमेंट। अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का किया हुआ है सर केवल उसमें। और मैं लगातार उससे बोल रहा हूँ करके कि मैं साथ में चलूंगा टेस्टिंग के लिए, तो अभी मतलब वो इग्नोर ही कर रहा करके। ठीक नहीं तो आप एक काम किया करो ना, हाँ। आप एक काम करो, कंक्रीट तो आप अपने साइट पे बना रहे हैं ना? हाँ कंक्रीट साइट है ना? पे। आप मैं बतलाऊंगा कैसे, आपको भी मालूम है, लेकिन जो भी मैं बतलाऊंगा जब मैं कराऊंगा कि आप जो क्यूब है आप अपने सामने आप कास्ट करो और उस पर आप एक अपना सिग्नेचर कर दिया करो। ठीक है ना? एक सिग्नेचर आप कर दिया करो उस पर, क्योंकि जिस समय वो वेट है तो सिग्नेचर तो आराम से हो जाएगा। हाँ हो जाए। ठीक है। और जब आप उसकी क्वेरिंग जो है तो ठीक है आप अपने यहाँ करो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता। साइट पे आप क्वेरिंग इसकी मैनेज कर सकते हो यदि, और स्पेशली ये जो मौसम है, क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो टेम्परेचर का होता है। यदि आपके रूम में एसी वगैरह है और कोई बड़ा टब ले लो जिसमें आप मोल्ड को डिप कर सकते हो, तो आप अपने प्रेजेंस में भी करवा सकते हो। इसके बाद जहाँ पे उसको टेस्ट करवाना है आप उस लैब में उस क्यूब को लेकर चले जाओ और आप टेस्ट करवाओ कि भाई चलो मैं अपना सामने टेस्ट करवाता हूँ। लेकिन अगेन देखिए, मैं आपको एक चीज मैंने इस प्रेजेंटेशन के शुरू में ही कहा कि लैब में केवल टेस्ट कर लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लैब में किस कंडीशन में टेस्ट हो रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की मशीन ही है उसकी, है कि नहीं? तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन की कैलिब्रेशन कब से नहीं हुई है? प्रूविंग रिंग उसके पास है कि नहीं है? यदि प्रूविंग रिंग ही मान लीजिए उसके पास नहीं है तो कैलिब्रेशन कैसे करेगा अपने मशीन का? अरे चलिए मान लीजिए कि छोटी पार्टी है उसके पास प्रूविंग रिंग नहीं है, तो कहीं बाहर से उसने बुला के किसी से कैलिब्रेशन करवाया है क्या? वो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मांगिए उससे। प्रूविंग रिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन का 6 महीने में एक बार जरूर कैलिब्रेशन होना चाहिए एज पर ये, और साल से तो ऊपर नहीं होना चाहिए। चलो मैं थोड़ा रिलैक्सेशन भी उसको कर लेता हूँ तो वो कैलिब्रेशन हुआ है कि नहीं? उसके पास ट्रेंड आदमी है कि जो क्यूब ही मान लीजिए कि उसने गलत रख दिया, प्लेटन में आपको अलाइनमेंट करके नहीं रखा, है कि नहीं? तो भी आपका रिजल्ट, मान लीजिए कि रेट ऑफ लोडिंग ही उसने गलत लगा दिया, बहुत स्पीड से उसने मशीन को चला दिया, तो आपका स्ट्रेंथ, बहुत सारे इसमें मतलब इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं। ये जो मटेरियल टेस्टिंग जो है ना, बड़ा वो ट्रिकी काम है। जो स्मार्ट टेस्टर होते हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बहुत सारे जुगाड़ कर लेते हैं, वो पॉसिबल है। इसीलिए आपको सब चीज मालूम होना चाहिए कि भाई ठीक है, जहाँ पे अब मान लो कि क्वेरिंग भी आपने अपने यहाँ कर लिया, ठीक है, अब वो टेस्टिंग जो कर रहा है वो एज पर आईएस प्रोसीजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें मशीन उसकी कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, प्रेशर आयल की मेंटेन है कि नहीं है, रेट ऑफ लोडिंग मेंटेन है कि नहीं है, ये सारी चीज देखनी चाहिए आपको। यदि डाउट होता है किसी आदमी पे, मान लीजिए कि वो बराबर अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है और अपने मन से कहीं से भी टेस्टिंग करा के ला रहा है, तो मैं बराबर नहीं बोलता हूं कि आप बराबर उसको मिसट्रस्ट करो, लेकिन हाँ देयर शुड बी सम क्रॉस चेक, दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड, दिस इज माय पॉइंट। हेलो। हाँ जी सर मैं राकेश उके बोल रहा हूँ झारखंड से। हाँ हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं डिफरेंट टेस्ट